افغانستان میں قیام امن کی کوششیں تیز۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی دوشنبے میں شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس میں شرکت کے لیے 3 روزہ سرکاری دورے پر تاجکستان پہنچ گئے۔ ہوائی اڈے پر تاجکستان کے نائب وزیر خارجہ شرف شیر علی زادہ اور سفارت خانے کے سینئر افسران نے وزیر خارجہ کا استقبال کیا۔ افغانستان میں بدلتی صورتحال پر گہری نظر ہے۔ پوری کوشش ہے کہ کابل میں ایک پرامن اور سب کی رائے پر مبنی نظام حکومت کے ذریعے آگے بڑھا جائے۔ ہماری افغان پالیسی پاکستان کے مفاد پر ہے۔ پاکستان کی زمین افغانستان کے خلاف استعمال نہیں ہو رہی۔ امید ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ وفاقی وزیر اطلاع چودھری فواد حسین کا ٹویٹ۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں افغان حکومت اور طالبان کے وفود کے درمیان مذاکرات میں پیش رفت۔ ایجنڈے کے بنیادی امور پر اتفاق کرائے۔ افغانستان میں پلخمری، تعلقان، قلعہ شبرقان، میدان شہر، غزنی شہر، قندھار اور لشکرگاہ کے نواح میں لڑائی جاری۔ طالبان نے مزید 2 اضلاع پر قبضہ کر لیا۔ نمروز کے شہر دلارام میں کار بم دھماکہ، افغان سیکورٹی فورسز کے 15 اہلکار ہلاک۔ بھارت نے مزار شریف اور قندھار کا قونصل خانہ بند کر دیا۔ بھارت کے سفارتکار اور سیکورٹی اہلکار قندھار سے چلے گئے۔ افغانستان کی مسلسل بگڑتی ہوئی صورتحال کے بعد آسٹریلیا نے بھی افغانستان سے اپنے تمام فوجی نکال لیے۔ وفاقی دارالحکومت سمیت وسطی و بالائی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، جنوبی سندھ، کشمیر اور گلگت بلتستان کے علاقوں میں مانسون کی بارشیں۔ موسلا دھار بارش سے ندی نالوں میں طغیانی۔ حویلیاں میں شاہراہ قراقرم پر واقع ایوب پل ٹوٹ گیا۔ رواں مانسون کے سیزن میں بارشوں کے باعث سیلابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ NDM میں ملک میں ایک بار پھر کرونا کے پھیلاؤ میں تیزی۔ مثبت کیسز کی شرح 3.84%۔ 24 گھنٹے کے دوران 1808 نئے کیسز رپورٹ، 15 افراد جاں بحق۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 47,015 ٹیسٹ کیے گئے۔ اسلام آباد میں کرونا کے کیسز میں اضافہ، 5 دنوں میں شرح 5% ہو گئی۔ اسلام آباد کے متعدد علاقے کورونا کیسز کی وجہ سے سیل کر دیے گئے۔ سیل کیے گئے علاقوں میں اسلام آباد ماڈل اسکول فار بوائز F83، قرطبہ ٹاؤن G11-2، F63، G72 اور سوانگ گارڈن شامل۔ DC آفس مقبوضہ کشمیر میں 13 جولائی 1931 کے شہداء کو خراج عقیدت۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی کل مکمل ہڑتال کی کال۔ قابض فوج کی شپیاں میں محاصرہ تلاشی کی کارروائیاں، متعدد افراد گرفتار۔ کرونا وائرس کی بھارتی قسم ڈیلٹا دنیا کے لیے خطرہ۔ انڈونیشیا، امریکہ، برطانیہ اور یورپ سمیت دنیا کے بیشتر ممالک میں بھارتی وائرس تیزی سے پھیلنے لگا۔ یہ رجحان رہا تو ڈیلٹا دنیا بھر کے کرونا کیسز میں سب سے زیادہ ہو جائے گا۔ عالمی ادارہ صحت نے خبردار کر دیا۔ تاجکستان کے علاقے راشٹ میں 5.9 شدت کے زلزلے سے تباہی۔ عمارتوں تلے دبنے سے 5 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ زلزلے سے درجنوں مکانات زمین بوس، کئی علاقوں میں بجلی کا نظام بھی درہم برہم۔ ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ، بے گھر ہونے والے افراد کے لیے ریلیف کیمپ قائم کر دیا گیا۔ ٹینس کی دنیا کے عالمی نمبر 1 سربیا کے نواک جوکووچ نے تاریخ رقم کر دی۔ جوکووچ نے ومبلڈن ٹینس چیمپئن شپ جیت کر راجر فیڈرر اور رافیل نڈال کے 20 گرینڈ سلیم ٹائٹل کا ریکارڈ برابر کر دیا۔ فائنل میں 34 سالہ ٹینس سٹار اٹلی کے میٹیو بریٹنی کو شکست دی۔ جوکووچ کا رواں سال کا یہ 30واں گرینڈ سلیم اعزاز ہے۔ اٹلی نے انگلینڈ کو شکست دے کر یورو کپ فٹ بال کا ٹائٹل جیت لیا۔ دونوں ٹیموں نے مقررہ وقت میں 1-1 گول کیا۔ اضافی وقت میں بھی میچ برابر رہا۔ فیصلہ پنالٹی شوٹ آؤٹس پر ہوا۔ اٹلی نے 2 کے مقابلے میں 3 گول سے فتح سمیٹی۔ فائنل جیتنے کے بعد اٹلی کے شہریوں کا زبردست جشن، سڑکوں پر نکل آئے۔ وطن واپس پہنچنے پر شاندار استقبال۔
اور پاکستان انگلینڈ کرکٹ سیریز 3 ایک روزہ میچز کی سیریز کا آخری ون ڈے کل کھیلا جائے گا۔ میچ کے لیے قومی ٹیم لندن سے برمنگھم پہنچ گئی۔ کھلاڑی آج نیٹ پریکٹس سیشن کریں گے۔ انگلش ٹیم کو سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل۔ میچز دیکھیے پی ٹی وی سپورٹس پر براہ راست۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں دن 12 بجے کا خبرنامہ، اور میں ہوں مناظر حسین۔ میں ہوں ہما ملک، اور سپورٹس نیوز کے لیے میں آپ کے ساتھ ہوں گا محمد انیس۔ ہیڈ لائنز آپ ملاحظہ کر چکے ہیں، خبروں کی تفصیل ہوگی اس بریک کے بعد۔ بیٹا، بقرعید آ رہی ہے، قربانی کے حصے کے پیسے جلد بھیج دینا۔ ابا اس سال حصہ نہیں، بکرا لیں گے فوراً۔ کیا کہا بیٹا؟ پورا بکرا؟ ایم سی بی برق رفتار کے ساتھ اپنوں کی ہر ضرورت پوری کریں فوراً۔ ایم سی بی برق رفتار، فوراً سے فوری۔ ایم سی بی بینک فار لائف۔ ویلکم بیک۔ تفصیلی خبروں کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی 3 روزہ سرکاری دورے پر تاجکستان پہنچ گئے ہیں۔ دوشنبے کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر تاجکستان کے نائب وزیر خارجہ شرف شیر علی زادہ، تاجکستان میں تعینات پاکستان کے سفیر عمران حیدر اور پاکستانی سفارت خانے کے سینئر افسران نے وزیر خارجہ کا خیر مقدم کیا۔ وزیر خارجہ دوشنبے میں شنگھائی تعاون تنظیم کی وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ وزیر خارجہ شنگھائی تعاون تنظیم کے افغانستان کے لیے وزرائے خارجہ کانٹیکٹ گروپ کے اجلاس میں شرکت کریں گے اور افغانستان کی تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال پر پاکستان کا نقطہ نظر پیش کریں گے۔ وزیر خارجہ وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس کے موقع پر روس، چین، تاجکستان، ازبکستان، کرغزستان سمیت مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ اپنے دورے میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی تاجکستان کے صدارتی محل میں تاجک صدر امام علی رحمان سے ملاقات کریں گے۔ دوشنبے میں اجلاس کے موقع پر وزیر خارجہ مقامی اور بین الاقوامی میڈیا نمائندگان سے گفتگو کریں گے اور مختلف علاقائی اور عالمی امور پر پاکستان کا نقطہ نظر پیش کریں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ افغانستان میں بدلتی صورتحال پر گہری نظر ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کہہ چکے ہیں کہ امن میں حصہ دار ہوں گے لیکن جنگ میں نہیں۔ اپنے ٹویٹ میں وزیر اطلاعات نے کہا کہ پوری کوشش ہے کابل میں ایک پرامن اور سب کی رائے پر مبنی نظام حکومت کے ذریعے آگے بڑھا جائے، لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو بھی پاکستان کے اندر اس کے اثرات نہیں آنے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری افغان پالیسی پاکستان کے مفاد پر مبنی ہے۔ پاکستان کی زمین افغانستان کے خلاف استعمال نہیں ہو رہی اور امید ہے کہ افغانستان کی سرزمین بھی پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ چودھری فواد حسین نے کہا کہ سیاسی پارلیمانی قیادت عدم مداخلت کے اصول پر متفق ہے۔ دوحہ میں افغان حکومت اور طالبان کے وفود کے درمیان بات چیت میں پیش رفت ہوئی ہے اور فریقین نے ایجنڈے کے بنیادی امور پر اتفاق کر لیا ہے۔ مذاکرات کاروں نے کہا ہے کہ بات چیت کو آگے بڑھانے کے لیے تیسرے فریق کو شامل کیا جا رہا ہے۔ دوحہ میں طالبان کے سیاسی دفتر نے تصدیق کی ہے کہ بات چیت میں پیش رفت ہو رہی ہے، تاہم تمام امور پر اتفاق رائے ہونے تک بات چیت کو خفیہ رکھا جائے گا۔ افغانستان کے شہر قندھار میں بھارتی قونصل خانے پر طالبان نے قبضہ کر لیا ہے۔ طالبان کی جانب سے قندھار میں بھارتی قونصل خانے پر قبضے کی ویڈیو بھی جاری کر دی گئی ہے۔ ویڈیو میں طالبان کو قندھار میں بھارتی قونصل خانے کے مختلف حصوں میں جاتا دیکھا جا سکتا ہے۔ طالبان نے صوبہ غور کے 2 اضلاع پر قبضہ کر لیا ہے، جبکہ 10 سے زائد شہروں کے نواح میں لڑائی جاری ہے۔ جن شہروں کے قریب لڑائی ہو رہی ہے ان میں پلخمری، تالقان، قلعہ نو، صبرقان، میدان شہر، غزنی شہر، قندھار شہر اور لشکر گاہ شامل ہیں۔ قندھار کے ہسپتالوں میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 16 لاشوں اور 57 زخمیوں کو لایا گیا ہے۔ صبح نمروز کے دلارام شہر کار بم دھماکے میں افغان سیکیورٹی فورسز کے درمیان 15 افراد ہلاک یا زخمی ہو گئے ہیں۔ امریکہ اور ترکی کے درمیان ایک سمجھوتا ہوا ہے جس کے تحت ترک فوج کا کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی سنبھالیں گے، تاہم طالبان نے کہا ہے کہ انہیں یہ سمجھوتا قبول نہیں ہوگا۔ افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلاء کے ساتھ ہی ملک میں خانہ جنگی کے خطرات بڑھ گئے ہیں۔ خانہ جنگی کی صورت میں جہاں اندرونی صورتحال تشویشناک ہوگی، وہیں افغانستان کے ہمسایہ ملکوں خاص کر پاکستان پر بھی اس کے اثرات ہوں گے۔ رپورٹ کریں گے امجد علی۔
افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلاء کے اعلان کے ساتھ ہی طالبان نے مختلف علاقوں میں پیش قدمی بڑھائی۔ جمعے کو طالبان نے اعلان کیا کہ وہ ملک کے 85% علاقے پر قابض ہو چکے ہیں، تاہم حکومتی اہلکاروں نے اسے محض پروپیگنڈا قرار دیا۔ ایک طرف افغان حکومت اور طالبان کے درمیان دوحہ میں افغانستان کے مستقبل کے حوالے سے مذاکرات جاری ہیں، تو دوسری طرف طالبان کی پیش قدمی میں بھی کوئی کمی نہیں آ رہی۔ افغانستان میں آج امن کی جتنی ضرورت ہے اتنی کبھی نہیں تھی۔ افغانستان کی کئی دہائیاں، وہاں کے جو وار چلڈرن ہیں، کئی نسلیں اس خانہ جنگی کی جنگ کی دہشت گردی کے خلاف لہر کی شکار ہو چکی ہیں، اور اس کے پورے سپل اوور اس کے اثرات پورے خطے تک آئے ہیں۔ افغانستان میں چلنے والی آگ کی چنگاریاں اور شعلے ایران، پاکستان اور پورے خطے پہ مرتب ہوتے ہیں۔ پاکستان بارہا کہہ چکا ہے کہ خانہ جنگی کسی کے مفاد میں نہیں، افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ بندوق سے نہیں مذاکرات سے ہونا چاہیے۔ پاکستان کا واضح موقف ہے کہ افغانستان کے مستقبل کے حوالے سے متفقہ طور پر کیا گیا فیصلہ پاکستان کو قابل قبول ہوگا۔ امجد علی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اور یہاں آپ کو بتائیں گے کہ صوبائی دارالحکومت لاہور سمیت پنجاب بھر میں مانسون کی بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں آج صبح سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ صبح 9 بجے سے شروع ہونے والی بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ ضلعی انتظامیہ نے مانسون کی بارشوں کے پیش نظر متعلقہ محکموں کو چوکس رہنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ ڈسپوزیبل سٹیشنز پر سٹاف دگنا اور دیگر مشینری کو فعال رکھنے کی ہدایات کی گئی ہیں، جبکہ انڈر پاسز پر بھی متعلقہ عملہ الرٹ رہے گا۔ پنجاب کے دیگر اضلاع میں بھی بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ سیالکوٹ میں 107، جہلم 98، گجرات 66، منڈی بہاؤدین 50 اور گوجرانوالہ میں 49 ملی لیٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے بارشوں کے باعث واسا اور انتظامیہ کو الرٹ رہنے کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے بارش کے باعث نشیبی علاقوں میں جمع ہونے والے پانی کی جلد نکاسی کو یقینی بنانے اور اس ضمن میں تمام وسائل بروئے کار لانے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے انتظامیہ کے اعلیٰ حکام اور ٹریفک پولیس کے حکام کو فیلڈ میں موجود رہنے کی ہدایت کی اور کہا کہ وہ ہر علاقے میں بارش اور نکاسی آب کے انتظامات کا خود جائزہ لیں گے۔ کراچی سمیت سندھ کے مختلف اضلاع میں مانسون کی پہلی بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ کراچی میں کئی روز سے جاری حبس اور گرمی کا زور ٹوٹ گیا اور موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی سمیت زیریں سندھ میں بارشوں کا یہ سلسلہ 16 جولائی تک رہنے کا امکان ہے۔ مانسون ہواؤں کا یہ سلسلہ بھارتی گجرات سے ملک میں داخل ہو رہا ہے۔ اس دوران کہیں تیز اور ہلکی بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ اب تک کراچی کے علاقے گلشن حدید میں سب سے زیادہ 17 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جبکہ پی ایف بیس فیصل پر 5 ملی میٹر، یونیورسٹی روڈ پر 4.3 ملی میٹر اور لانڈی میں 4 ملی میٹر بارش ہوئی۔ سندھ کے دیگر شہروں حیدرآباد، سانگڑ، میرپور خاص، بدین، ٹھٹھہ، ننگر پارکر اور مٹھی میں بھی بارش ہوئی۔ ملک کے بیشتر علاقوں کی طرح ایبٹ آباد، ایوبیہ اور گردونواہ میں بھی گزشتہ رات موسلا دھار بارش ہوئی۔ حویلیہ میں موسلا دھار بارش کے باعث شاہراہ قراقرم پر واقع ایوب پل ٹوٹ گیا ہے۔ اسلام آباد اور دیگر علاقوں سے ایبٹ آباد کے لیے سفر کرنے والے مسافروں کو موٹر وے استعمال کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ حویلیاں کے گاؤں نوشہرہ چمبا کا واحد پل بھی پانی میں بہہ گیا ہے۔ پل بہہ جانے کی وجہ سے حویلیاں کا دیگر علاقوں سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ موسلا دھار بارش سے نشیبی علاقوں میں پانی بھر گیا۔ مانسہرہ شہر اور گردنواہ میں بھی علل صبح موسلا دھار بارش ہوئی، جس کے باعث کاکول روڈ سے ملحقہ علاقوں میں پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔ ہزارہ ڈویژن میں بارش کی صورتحال کے بارے میں جانتے ہیں اپنے نمائندے محمد فہیم سے۔ جی فہیم، بتائیے کہ ہزارہ ڈویژن میں بارش کی اب کیا صورتحال ہے؟ جی یہ گزشتہ رات 2 بجے کے بعد جو ہے مانسہرہ ایبٹ آباد اور ملحقہ علاقوں میں جو ہے موسلادھار بارش ہوئی تھی، جس سے جو ہے ایبٹ آباد اور مانسہرہ میں کافی نقصان ہوا ہے۔ مانسہرہ میں جو ہے ریسکیو ادارہ کے مطابق 2 کیجولٹیز ہوئی ہیں۔ ایک مزدور جو ہے فوجی فاؤنڈیشن کے قریب دیوار گرنے سے جاں بحق ہوا ہے، جبکہ نواحی علاقے پاروں ڈیری میں ایک 9 سالہ بچہ جو ہے اپنے گھر کے تہخانے میں جو ہے وہ ڈوب کر جاں بحق ہو چکا ہے۔ اسی طرح جو ہے ایبٹ آباد میں بھی موسلادھار بارشوں سے مانسہرہ روڈ جو ہے اور کاکول روڈ پہ جو ہے وہ نشیبی علاقے جو ہے وہ زیر آب آ گئے تھے اور پانی جو ہے گھروں میں داخل ہو چکا تھا۔ اس کے ساتھ ملحقہ جو حویلیہ میں جو ہے شاہراہ قراقرم پر جو ایوب پل تھا اس کو شدید نقصان پہنچا ہے، اور اس کے جبکہ ٹریفک جو ہے وہ سی پیک پہ اور موٹر وے پہ ڈائیورٹ کر دی گئی ہے، لیکن اس کی متبادل جو ہے پرانا پل جو ہے اس پہ بھی جو ہے ٹریفک کو ڈائیورٹ کر دیا گیا ہے۔ اچھا فہیم، یہ کہیے گا کہ انتظامیہ کی جانب سے متاثرین کے لیے اور بالخصوص مونسون کے پیش نظر شہریوں کے لیے کیا ہدایات جاری کی گئی ہیں؟ جی این ڈی اے نے تو پہلے ہی الرٹ جاری کر دیا تھا کہ یہ ہزارہ ڈویژن کے بیشتر علاقے میں جو ہے وہ موسلادھار بارش کا امکان ہے۔
اس لیے جو ہے ڈسٹرکٹ انتظامیہ نے اپنے جو ہے انتظامات کر رکھے تھے، لیکن چونکہ بارش موسلادھار تھی اور اس وجہ سے جو ہے وہ سیویج لائنیں جو بعض علاقوں میں ہے وہ بند تھیں، جس سے جو ہے پانی جو ہے سڑکوں میں آنے لگ گیا ہے۔ تاہم مانسرا اور گردنوا میں جو ہے انتظامیہ بالکل الرٹ ہے اور ریسکیو والے جو ہے وہ بھی بالکل فلی الرٹ ہیں۔ انہوں نے رات کو بھی ریسکیو آپریشن میں 10 سے زیادہ بندوں کو جو ہے وہاں سے پانی سے نکال دیا۔ صحیح، فہیم یہ بتائے گا کہ کس قدر جانی اور مالی نقصان ہو چکا ہے اب تک لوگوں کا؟ جی ابھی میں نے ڈسٹرکٹ ابتباد اور ڈسٹرکٹ مانسرا کے انتظامیہ سے رابطہ کیا تھا، انہوں نے کہا جی ہم جو ہے انیشلی رپورٹ تیار کر رہے ہیں اور ہم نے اپنے ریونیو اسٹاف کو کہہ دیا ہے کہ وہ جو ڈیمیجز ہوئے ہیں ان کی رپورٹ جو ہے ارلی ہمیں پہنچا دیں۔ صحیح، اور ان نقصانات کا ازالہ کرنے کے لیے بھی انتظامیہ کی جانب سے کچھ کہا گیا ہے؟ جی انہوں نے جو کہا ہے کہ جی اپنے ریونیو اسٹاف سے یہی کہا کہ جی جتنے ڈیمیجز ہوئے ہیں لوگوں کے اس کی رپورٹ ڈیٹیل رپورٹ جو ہے وہ آپ بنا کے کنسرن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کر لیں، فارورڈ کر لیں تاکہ اس پہ جو ہے فوراً ایکشن لیا جائے۔ جی بہت شکریہ فہیم، آپ ہمیں ہزارہ ڈویژن سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ناظرین موسم کے حوالے سے مزید آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر بالائی و وسطی اضلاع میں مطلع جزوی ابرآلود رہنے کے علاوہ کشمیر، پنجاب، خیبر پختونخوا، اسلام آباد، گلگت بلتستان اور جنوب مشرقی سندھ میں آندھی، تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ اس دوران کشمیر، شمال مشرقی پنجاب اور بالائی خیبر پختونخوا میں چند مقامات پر موسلادھار بارش کا بھی امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر، سندھ، بگروٹ اور جوب میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ ملک میں سب سے زیادہ درجہ حرارت نوکنڈی میں 46 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ داربندین، جیکب آباد، سبی، دادو اور بہاولپور میں 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ مزید خبروں میں آپ کو بتائیں گے کہ صدر ڈاکٹر عارف علوی کے نام امیر کویت شیخ نواف الاحمد الصباح نے جوابی مراسلے میں دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی۔ صدر مملکت نے اپنے خط میں امیر کویت کو دورہ پاکستان کی دعوت دی تھی۔ امیر کویت نے خط میں پاکستان اور کویت کے مابین مضبوط تعلقات پر اظہار اطمینان اور باہمی مفادات کے لیے تمام شعبوں میں تعلقات کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ امیر کویت نے مسلم امہ کے مسائل بالخصوص مسئلہ فلسطین پر کویت کے کردار کی تعریف پر پاکستان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ انہوں نے خط میں لکھا کہ امید ہے کہ کورونا کی عالمگیر وبا سے دنیا کو جلد چھٹکارا حاصل ہوگا۔ آپ کو آگاہ کریں گے، ملک میں ایک مرتبہ پھر کرونا کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ عوام نے اگر احتیاطی تدابیر اختیار نہ کیے تو صورتحال سنگین ہونے کا خدشہ ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کرونا وائرس کے مثبت کیسز کی شرح 3.84% رہی، جبکہ 1808 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی۔ کرونا سے مزید 15 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں، جس کے بعد ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 22,597 ہو گئی۔ گزشتہ روز 47,015 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ اسلام آباد میں کرونا کے کیسز میں اضافہ ہوا ہے اور 5 دن میں شرح 5% ہو گئی۔ انتظامیہ نے اسلام آباد کے متعدد علاقے کرونا کیسز کی وجہ سے سیل کر دیے۔ ڈی سی آفس کے مطابق سیل ہونے والے علاقوں میں اسلام آباد ماڈل اسکول فار بوائز F83، قرطبہ ٹاؤن G11-2، F63، G72 اور سوانگ گارڈن کے متعدد علاقے شامل ہیں۔ وفاقی وزیر امور کشمیر و گلگت بلتستان علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ شریف خاندان کی رگوں میں کشمیری خون اس وقت کہاں تھا جب مودی کو شادی پر دعوت دے رہے تھے۔ مریم نواز کے آزاد کشمیر میں خطاب پر رد عمل دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نواز شریف جندال سے ملاقات کر کے کہتے ہیں کہ ان کے ذاتی مراسم ہیں۔ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ یہ بچے صرف اپنے ابو بچانے نکلے ہیں۔ پرچیوں والے نام نہاد لیڈر وزیر اعظم عمران خان کا کیا مقابلہ کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ عمران خان 2 دہائیوں کی جدوجہد کے بعد عوام کی مدد سے برسر اقتدار آئے۔ مریم اپنے والد سے پوچھیں کہ وہ کس طرح برسر اقتدار آتے رہے۔ چور ڈاکو عوام کا پیسہ لوٹ کر لندن میں مزے کر رہے ہیں۔ معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل کا کہنا ہے کہ جھوٹ بولنا اور بد زبانی کرنا مریم صفدر کا وتیرہ ہے۔ نواز شریف کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے لندن میں شاپنگ کر رہے ہیں۔ مریم صفدر کے کشمیر میں جلسے سے خطاب پر رد عمل دیتے ہوئے ڈاکٹر شہباز گل نے کہا کہ مریم صفدر نے 2015 کی ورلڈ بینک رپورٹ بھی بغیر پڑھے شیئر کی۔ اس رپورٹ میں نواز شریف حکومت کو نالائق اور نااہل قرار دیا گیا۔ شریف خاندان کے اسرائیل اور سرحد پار گپتا انڈسٹری سے واضح روابط ہیں۔ آزاد کشمیر میں الیکشن ہارنے کے بعد پھر دھاندلی کا رونا رویا جائے گا۔ جھوٹ بولنا مریم صفدر صاحبہ کا پرانا کام ہے۔ یہ آج کہہ رہی تھی کہ نواز شریف جو ہے وہ کشمیر کی ہر ماں، ہر بچے اور ہر بوڑھے کے ساتھ کشمیر میں کھڑا ہے۔ نہیں مریم صفدر صاحبہ، نواز شریف تو ہیرلڈ میں
सामने रखना चाहता हूँ। एक तो ये कि गुज़िश्ता 1-2 हफ्तों में आपने देखा कि हमारे केसेस जो कोरोना के हैं उनमें इजाफ़ा हो रहा है और जो पॉजिटिविटी की शरह है उसमें भी एक लगातार इजाफ़ा देखा गया। हमारी जो नेशनल एवरेज है वो 2% के करीब थी और आज हम तकरीबन 4% को टच कर रहे हैं। अब इसमें 2 मेजर वजूहात हैं जिसके बायस ये हो रहा है। एक तो ये कि हम लोग अमूमी तौर पे बद एहतियाती भी करते रहें, लेकिन साथ साथ ये जो नई अक़साम है वायरस की, नए वेरिएंट हैं, ख़ुसूसन जिसको डेल्टा या इंडियन वेरिएंट बोलते हैं, वो उसका भी असर हमारे इस एपिडेमिक के ऊपर आ रहा है। अब इसमें इसका हल क्या है? सबसे पहले तो ये कि वो जो मौजूदा, जिनको NPIs बोलते हैं, जो मौजूदा रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनके ऊपर कंप्लायंस यानी उनके ऊपर अमल दरामद बहुत अहम है और हमारी कोशिश होगी कि इस अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। और इसको यकीनी बनाने के लिए 2 चीज़ें हैं। एक आपसे अपील आवाम से कि वो तमाम रिस्ट्रिक्शंस ख़ास तौर पे मास्क का इस्तेमाल और हजूम वाली जगह से इज्तनाब बहुत अहम है। इसमें हम जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस हैं कंप्लायंस के वो भी बढ़ाएंगे और इसका ख़ास फोकस जो है वो बड़े शहर होगा और जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं वो होगा। इस सिलसिले में इंतज़ामी तौर पे हमें जो भी मदद चाहिए वो हम लेंगे, बशमूल फ़ौज की मदद के। इसके अलावा जो लॉकडाउन्स हैं, स्मार्ट लॉकडाउन्स हैं, जो हम पहले भी इस्तेमाल करते आए हैं, उस टेक्निक का भी दोबारा से और बढ़ चढ़ कर इस्तेमाल किया जाएगा। और जो हमारी मोबिलिटी है, हमारी जो मूवमेंट है, उसके ऊपर भी कुछ कंट्रोल्स या कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो हैं हम समझते हैं रखने की ज़रूरत है। टूरिज़म के हवाले से बात करना चाहूँगा। आजकल सीज़न भी है और हमारी बहुत सारी आबादी जो है वो इस दौरान, इन छुट्टियों में, गर्मियों में टूरिज़म मुख्तलिफ़ मकामात पर जाना चाहती है और जाते भी हैं। इस दौरान हम एक चीज़ कहना चाहेंगे NCOC की तरफ से और वज़ारत सेहत की तरफ से, और वो ये कि टूरिज़म के हवाले से हमारी ताकीद होगी कि वो तमाम लोग जो वैक्सीनेटेड हैं वो ही टूरिज़म पे जा पाएंगे। ख़ुसूसन ये जो ईद की छुट्टियां आएंगी, इस दौरान में इस पाबंदी का इतलाक़ बहुत सख्ती से किया जाएगा। वैक्सीन एक बहुत अहम स्ट्रैटेजी है कोविड से मुकाबले की, मास्क और दीगर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं इसके अलावा। अब मैं कुछ वैक्सीन के बारे में भी आपको बताता चलूँ। एक तो ये कि मुल्क में काफ़ी वैक्सीन मौजूद है और इस किस्म की कोई कमी या मुश्किल की हमें इंफॉर्मेशन नहीं है। बल्कि मैं आपको बताता चलूँ, गुज़िश्ता रोज़ एक दिन पहले 4.5 लाख के करीब वैक्सीन डोजेज़ लगी हैं और 6 मिलियन यानी 60 लाख इजाफी डोजेज़ आइंदा आने वाली हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, आपको इससे वाज़े हो जाना चाहिए कि वैक्सीन की वाफिर मिक़दार मौजूद है और इस वैक्सीन का इस्तेमाल करें ताकि हम जो हमारे पास 2 अहम स्ट्रैटेजीज़ हैं इस बीमारी का हल करने के लिए, इसकी रुकावट में, इसको रोकने के लिए, जिसमें पाबंदियाँ अपनी जगह हैं, रिस्ट्रिक्शंस अपनी जगह हैं, मास्क का इस्तेमाल अपनी जगह है, लेकिन साथ साथ जो वैक्सीन है ये बहुत अहम स्ट्रैटेजी है। सो इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए इंशाल्लाह हम इस बीमारी से बाहर निकलने में कामयाब हो जाएंगे। मैं एक दफ़ा फिर दोहरा दूँ कि मौजूदा सूरत हाल कुछ ऐसी है जिसमें केसेस में इजाफ़ा हो रहा है और इस इजाफे को रोकने के लिए, वाज़े तौर पे रुकावट डालने के लिए जो हमारे मौजूदा इक़दामात हैं उसकी बेहतर इम्प्लीमेंटेशन, उसकी बेहतर अडॉप्शन, उसका बेहतर इस्तेमाल जो है वो ज़रूरी है। और इनकी इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाने के लिए हम तमाम इंतज़ामी जो हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं उसका इस्तेमाल करने का इरादा रखते हैं। एक बात। दूसरा, टूरिज़म के हवाले से वैक्सीनेशन लगवा के टूरिज़म पे ज़रूर जाइए, लेकिन वैक्सीनेशन जो है वो एक मैंडेटरी चीज़ होगी, ख़ुसूसन ईद की छुट्टियों में, लेकिन उसका इतलाक़ हम अभी से आपको बताना चाहते हैं। और आखिर में वैक्सीन्स लगवाइए, क्योंकि इसी के ज़रिए हम अपनी पॉपुलेशन को, अपनी आबादी को कोरोना के फैलाव से बचा सकते हैं। आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया।
कोरोना वायरस की शरह में इजाफा हो रहा है, इसलिए SOPs पर अमल दरामद बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा मुतासरा इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाएगा। सियाहत के लिए जाने वाले अफराद को वैक्सीनेशन लाजमी करवाना होगी। वैक्सीनेशन वाफर तादाद में मौजूद है और अवाम उन्नास को सेहत की सहूलत यकीनी बनाने के लिए और कोरोना वायरस से बचाने के लिए वैक्सीन का इस्तेमाल नागुज़ीर है। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान की न्यूज़ ब्रीफिंग आप मुलाहजा कर रहे थे। मज़ीद खबरों की जाने पड़ेंगे। वज़ीर ममलकत इत्तलात और नशरियात फ़ारूक हबीब का कहना है कि मरियम नवाज़ नवाज शरीफ की करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग की वारिस हैं। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोग उनसे पूछ रहे हैं कि जब मोदी बतौर मेहमान खुसूसी उनके घर शादी पर आया था, उस वक्त आज़ादी कश्मीर की बात क्यों नहीं की। वज़ीर ममलकत ने कहा कि आर या पार करने वाले आजकल हर जगह NRO के लिए ख्वार हो रहे हैं। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात करीब हैं। इंतखाबी सरगर्मियाँ और गहमा गहमी उरूज पर है। ऐसे में मुजफ्फराबाद का हल्का L28 मुजफ्फराबाद 2 सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बना हुआ है। यहाँ के सियासी मंजरनामे के बारे में आपको बताएंगे हमारे नुमाइंदे अदील अहमद खान। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद का हल्का L28 मुजफ्फराबाद 2 तकरीबन 1,20,000 नफूस पर मुश्तमिल है। रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 81,537 है। दारुल हुकूमत के करीब होने के बायस यह हल्का सियासी सरगर्मियों का महवर मरकज़ रहता है। इस हल्के से 25 जुलाई को होने वाले इंतखाबात में मुख्तलिफ सियासी जमातों के 18 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। ताहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चौधरी मोहम्मद शहजाद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद बाज़ल अली नकवी और मुस्लिम लीग नून के सैयद मुर्तज़ा अली गिलानी के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्का है। नए आने वाले उम्मीदवार वो अवाम की बुनियादी सहूलतों के हवाले से और एजुकेशन और सेहत के हवाले से वो अपने इक़दामात में जो है अपनी प्रायोरिटीज़ में इस चीज़ को रखेंगे। मैं हल्के के लोगों से भी ये गुजारिश करता हूँ कि आप इस चीज़ को फोकस करें कि आपका कैंडिडेट वो क्या विजन लेकर आ रहा है कि कैसे बेरोज़गारी कम होगी और सेहत के मसाइल कैसे कम होंगे और इसी तरह आपकी तालीम बेहतर कैसे होगी। इंतखाबात में चंद ही दिन बाकी हैं। इस हल्के में सियासी गहमा गहमी बामे उरूज पर है। हर सू पार्टी परचमों, बैनर्स और पोस्टर्स की बहार है। हल्का L28 मुजफ्फराबाद 2 से कामयाबी का कुर्रा किस उम्मीदवार के नाम निकलता है, ये 25 जुलाई को यहाँ के अवाम अपनी वोट के ताकत के जरिए करेंगे। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, जहलम वैली रोड, ज़िला मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। खबर दें कि आपको भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर से जहां हफ्ता शुहदा के आखिरी रोज़ कल मुकम्मल हड़ताल की जाएगी, जिसका मकसद 13 जुलाई 1931 के शुहदा को खिराज अक़ीदत पेश करना है। KMS के मुताबिक हड़ताल की कॉल कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने दी है। कल मज़ार शुहदा नक्शबंद साहिब श्रीनगर की तरफ मार्च किया जाएगा, जहाँ 13 जुलाई 1931 के शुहदा दफन हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने लोगों से अपील की है कि वो मार्च को कामयाब करके दुनिया को वाज़ेह पैगाम दें कि कश्मीरी भारत के नाजायज़ कब्ज़े को नहीं मानते। श्रीनगर और मकबूजा वादी के दीगर इलाकों में आज़ादी पसंद तंजीमों की तरफ से पोस्टर्स चस्पा किए गए हैं, जिनमें 13 जुलाई समेत तमाम शुहदाए कश्मीर को खराजी अक़ीदत पेश किया गया है। भारतीय फोर्सेज ने ज़िला शोपियां के इलाकों बरारीपुरा, हफशरमाल, मानलो और गादपुरा में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयाँ की। काबिज फोर्सेज के एहलकारों ने दर्जनों रहायशी मकानात और दीगर इमारतों की तलाशी ली। बदनाम ज़माना भारतीय तहकीकाती इदारे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने रॉ और पुलिस की मुआवनत से श्रीनगर में मदरसा सिराजुल उलूम और जनूबी कश्मीर में पश्तो, संसोमा और अच्छाबल में छापों के दौरान कई अफराद को गिरफ्तार किया। ज़िला कुलगाम के इलाके काजीगंड में एक हुर्रियत पसंद कारकुन की अहलिया ने खुदकुशी कर ली। भारतीय पुलिस ने उनके शौहर को शादी के चंद दिन बाद गुज़श्ता साल 26 दिसंबर को जम्मू खित्ते से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से वह मुसलसल जेल में नज़रबंद है। PDP की सदर महबूबा मुफ्ती ने जम्मू खित्ते में पार्टी वफूद से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जनूबी एशिया में देरपा अमन कायम करने का वाहिद तरीका बातचीत और मफाहमती अमल है। उन्होंने 11 सरकारी मुलाजमीन की बरतरफी की मजम्मत करते हुए कहा कि भारत खुद साख्ता कौम परस्ती की आड़ में कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी को दबाने की नाकाम कोशिश कर रहा है।
भारत में कोरोना केसेस में एक बार फिर इजाफा होने लगा है। हलाकतों की मजमूई तादाद बढ़कर 4,08,000 से ज़्यादा हो गई है, जबकि मुतासरा अफराद की तादाद 3,08,00,000 से तजावुज़ कर गई है। कोरोना की किस्म डेल्टा के फैलने के खतरे के पेश नज़र लोगों को SOPs पर अमल करने की हिदायत जारी की जा रही है। भारत कोरोना वायरस के हवाले से खतरनाक तरीन मुल्क बन चुका है। तमाम भारतीय रियासतों में कोरोना की मुख्तलिफ अक़साम सामने आने के बाद भी इंतज़ामिया मुतहरिक नहीं हुई। केसेस में दोबारा मुसलसल इजाफा हो रहा है। सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड्स की कमी ताहाल पूरी नहीं की जा सकी। भारत में इस वक्त कोरोना की चौथी किस्म डेल्टा, जिसे इंडियन वेरिएंट भी कहा जा रहा है, बड़ी तेज़ी से फैल रही है। इस वायरस से न सिर्फ भारत बल्कि हमसाया ममालिक अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान को भी खतरा है। कोरोना की तेज़ी से फैलने वाली किस्म डेल्टा के बायस दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक नई पाबंदियाँ आयद कर रहे हैं। अफगानिस्तान में कोरोना की नई लहर के बायस मुत्तहिदा अरब अमारात ने अफगान शहरियों की मुल्क में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। एक बयान में G20 ममालिक ने खबरदार कर दिया है कि तेज़ी से फैलने वाला भारतीय कोरोना वायरस डेल्टा मईशत की बहाली में रुकावट बन रहा है। दूसरी जानिब फ्रांस के वज़ीर माशियात का कहना है कि G20 ममालिक की जानिब से बेहतरीन मईशत की पेशगोई की गई है, ताहम कोरोना की भारतीय किस्म सब कुछ उलट कर रख देगी। आलमी सतह पर हलाकतों की तादाद 40,49,000 से बढ़ गई है, जबकि मुतासरा अफराद की तादाद 18,76,00,000 से ज़ायद हो गई है। इस वक्त 17,15,00,000 से ज़ायद अफराद सेहतयाब हुए हैं। ताजिकिस्तान के मशरकी ज़िला राश्त में 5.9 शिद्दत के ज़लज़ले ने वसी पैमाने पर तबाही मचा दी। ज़लज़ले से मुनहदिम होने वाली इमारतों के नीचे दबने से 5 अफराद हलाक और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। ज़लज़ले से दर्जनों मकानात ज़मीन बोस हो गए और कई इलाकों में बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, जबकि बेघर होने वाले अफराद के लिए रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं। पहाड़ी इलाकों में मुकीम अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। उधर तुर्की में महाजरीन को ले जाने वाली एक बस को हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में 12 अफराद हलाक और 26 जख्मी हो गए। यह हादसा तुर्की के सरहदी सूबे के एक जिला में पेश आया, जहां खाई में फंसने के बाद गाड़ी को आग लग गई। हुक्काम के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में पाकिस्तानी और अफगान बाशिंदे भी शामिल हैं। बस के मालिक को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी गई है। चीन के सूबे शिचुआन में शदीद बारिशों से सैलाब आ गया है और हज़ारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। चीन के सरकारी टीवी के मुताबिक सैलाब से सड़कें ज़ेरे आब आ गई हैं। इमदादी कारकुन बाज़जांग शहर के सैलाब में फंसे मकीनों को निकाल रहे हैं और 21,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। सैलाब से 200 घरों को नुकसान पहुँचा है और फसलें ज़ेरे आब आ गई हैं। लैंड स्लाइडिंग के बायस कई सड़कें बंद हैं। अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में शदीद गर्मी के बायस जंगलात में आग भड़क उठी है। आग बुझाने की कोशिशों के दौरान रियासत अरिज़ोना में 2 फायर फाइटर्स तैयारा हादसे में हलाक हो गए हैं। हादसा रियासत अरिज़ोना में पेश आया। रियासत ओरेगन में जंगलाती आग मजीद कई इलाकों तक फैल गई है। आग ने 308 मुरब्बा मील के इलाके को अपनी लपेट में ले रखा है। आग के फैलाव से कई लाख लोगों को बिजली की फराहमी भी मुअत्तल है। रुख करेंगे अहम कौमी खबरों का। आपको आगाह करें कि वफाकी और सूबाई हुकूमत की खुसूसी तवज्जो से जिला डेरा मुराद जमाली की आवाम की कसीर तादाद में कोरोना वैक्सीन लग रही है। इसी बारे में रिपोर्ट करेंगे अली जान मंगी। नसीराबाद में 26 वैक्सीनेशन सेंटर कायम कर दिए गए हैं, जो कि शहरी इलाकों के साथ साथ देही इलाके भी शामिल हैं। जिसने भी वैक्सीन नहीं कराई है वो वैक्सीन कराए। पूरी दुनिया में ये वबा फैला हुआ है। इससे बचने के लिए वाहिद रास्ता ये है कि हम वैक्सीन करें। कैंप में लोगों के आने की तादाद का इजाफा करने के लिए हम लोगों में शऊर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि लोग इसकी अफादियत को जान सकें। कोरोना वायरस से बचने के लिए हर शहरी को अपना मुस्बत किरदार अदा करना होगा, ताकि मुल्क को कोरोना वायरस से पाक किया जा सके। अली जान मंगी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। बलूचिस्तान के ज़िला चागी में कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत पाक चाइना टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर से इलाके के नौजवान मुस्तफीद हो रहे हैं। अली रजा की रिपोर्ट देखिए। चागी में पाक चाइना टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर से हुनरमंद नौजवानों की बड़ी खेप तैयार हो रही है। तालबंदीन में वाक़ इस इदारे में नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन के ज़ेर साया वज़ीर आज़म इमरान खान के कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत नौजवान नस्ल को इलेक्ट्रिशियन,
कंप्यूटर साइंस, वेल्डिंग, मशीनिस्ट समेत माइनिंग के कोर्सेज भी करवाए जा रहे हैं। इस इदारे से लगभग 600 नौजवान मुख्तलिफ कोर्सेज मुकम्मल कर चुके हैं, जिनमें बहुत सारे नौजवान अमली ज़िंदगी में बरसरे रोज़गार हो गए। इस इदारे में जहां मकामी नौजवान मुख्तलिफ हुनर सीख रहे हैं, वहीं UNHCR के ताउन से अफ़गान महाजरीन भी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। इस इदारे से फ़रागत के बाद तरबियत याफ्ता नौजवानों को अपना रोज़गार शुरू करने के लिए टूल किट्स भी फराहम किए जाते हैं। कोर्स कर रहा हूँ कंप्यूटर का, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारा सेकंड मंथ चल रहा है, जिसमें मैंने बहुत सारे जो है स्किलफुल चीज़ें अचीव की है। नेफ्टेक जो ट्रेड हमें प्रोवाइड कर रहा है चागी में, जिसके मुतालिक कंप्यूटर के हवाले से जो 2 मंथ से हमसे पढ़ रहे हैं, हमने बहुत कुछ हासिल हुआ है। मैं 2 महीने से इधर दाखिला ले लिया है, और इंशाल्लाह वेल्डिंग सीख कर मैं अपना खुद रोज़गार इंशाल्लाह करूँगा। चागी के इस वाहिद टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर से जहां नौजवान नस्ल इल्म व हुनर से आरास्ता हो रही है, वहीं इस इदारे को मज़ीद सहूलियात, जदीद टेक्नोलॉजी और वसाइल से आरास्ता करने की ज़रूरत है। अली रज़ा, PTV न्यूज़, चागी। ईद कुर्बान करीब आते ही इस्लामाबाद की मवेशी मंडियों में कोरोना SOPs के साथ कुर्बानी के जानवरों की खरीद और फरोख्त जारी है। तफसील चौधरी मौजर से। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदोनवा के रहायशियों के लिए 1100 कनाल रकबे पर मवेशी मंडी कायम की गई है, जहां मुल्क भर से व्यापारी कुर्बानी के जानवर फरोख्त करने के लिए लाए हैं। हुकूमत की जानिब से मंडी में खरीदो फरोख्त के लिए आने वालों की सहूलत के लिए खसूसी इकदामात किए गए हैं। कोरोना के इंतजाम भी आपने देखे हैं, लगाए हुए हैं। बैंक भी मैं यहाँ पे अरेंज किया है, CCTV कैमरे मेन गेटों पे लगाए हुए हैं। सहूलतें भी दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, हर चीज़, बिजली है। इस महंगाई के दौर में तो ये बहुत मुनासिब है। 40 जानवरों को हम ट्रीटमेंट दे चुके हैं। जानवर जब ट्रेवल करके आता है तो उसको प्रॉब्लम होती है, किसी को लेमनेस होती है, कोई बेचारा स्ट्रेस की वजह से खाना पीना छोड़ देता है। मंडी में खरीदारी के लिए आने वाले ज्यादा कीमतों का शिकवा करते हैं। बहुत रेट है आजकल मंडी का, छोटे छोटे जानवर का लाख से ऊपर मांग रहे हैं। रेट बहुत तेज है। बकरा ही लेने आए हैं, इसका हमने एक पता किया है, चौगा है ये 1,20,000 इन्होंने बताया। जो नॉर्मल जानवर है वो भी काफ़ी रेट बता रहे हैं, 3 लाख 3.5 लाख ये रेट। हुकूमत ने मवेशी मंडियों में अवाम को कोरोना से महफूज रखने के लिए जामे और मरबूत पॉलिसी के तहत मौसर और अमली इकदामात को यकीनी बनाते हुए SOPs बनाए हैं। खरीदारी के लिए आने वालों को इन पर अमल करके अपनी जिम्मेदारी को निभाना होगा। चौधरी मजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। ईद उल अज़हा के मौके पर बेवा ख़वातीन और यतीम बच्चों की कफ़ालत और इमदाद के हवाले से कोयटा में तकरीब हुई। कोयटा से रिपोर्ट करेंगे वक़ार अहमद। तुर्की की फलाही तंजीम IHH और अल खिदमत फाउंडेशन के मुश्तरका ताउन से कोयटा में 50 बेवा ख़वातीन को सिलाई मशीनें दी गईं। सिलाई मशीनें देने का बुनियादी मकसद बेवा ख़वातीन को माशी तौर पर मुस्तहकम और खुद इन्हिसार बनाना था। ब्रिगेडियर मोहम्मद रफीक 12 कोर सदर्न कमांड तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। मेहमान खुसूसी का कहना था कि पाकिस्तान आर्मी मुल्क और कौम को दरपेश हर चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार है। माशरे की बेहतरी, मुल्क की बेहतरी, हर वो काम जिसमें मुल्क की बेहतरी हो सकती हो, वो पाकिस्तान आर्मी का पहला ऑब्जेक्टिव हो जाता है। अल खिदमत फाउंडेशन बलूचिस्तान के सरबराह का कहना था कि फलाही प्रोग्राम को मज़ीद वसअत देने के लिए पुरअज़्म है। 300 बच्चे इस पूरे सूबे में हम उनकी कफ़ालत कर रहे हैं और कुछ अरसे में इंशाल्लाह 200 मजीद बच्चों का इजाफा होगा और इस तरह से 500 बच्चों की तरफ हम बढ़ेंगे। ईद की मुनासिबत से 300 यतीम बच्चों में गिफ्ट भी तकसीम किए गए। वक़ार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। उधर गुजरावाला में भी 16 मवेशी मंडियां कायम कर दी गई हैं। कोरोना से बचाव के लिए ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से मुकम्मल हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। रिपोर्ट करेंगे शहरयार भट्ट। ईद कुर्बान नजदीक आते ही शहरियों का जानवरों की खरीदो फरोख्त की तरफ रुझान बढ़ गया। जिले इंतजामिया की जानिब से शहर भर में 16 मवेशी मंडियां कायम कर दी गईं और सिर्फ मुकर्ररा मवेशी मंडियों में ही जानवरों की खरीदो फरोख्त की इजाजत दी गई है। साफ सुथराई का ख्याल रखा जा रहा है, SOPs का उससे भी ज्यादा ख्याल रखा जा रहा है। मंडी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, सारा गुजरांवाला फिर है,
इत्थे पहुंचे हैं माशाल्लाह इन्हां दे इकदाम बहुत अच्छे ने। जिले इंतजामिया की जानिब से मवेशी मंडियों में तमाम तर सहूलियात, जानवरों के लिए पीने का ताज़ा पानी, रात के औकात के लिए रोशनी, सफाई सुथराई और दीगर इंतजामात की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। लाइफ स्टॉक, हेल्थ और रेस्क्यू की जानिब से तमाम मंडियों में कैंप्स भी लगाए गए हैं। ये जो 16 पॉइंट्स बनाए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से अवाम के लिए एक तोहफा है, जिसमें तमाम तर सहूलियात फ्री ऑफ कॉस्ट अवाम को दी जा रही हैं। मवेशी मंडियों में आने वाले लोगों को तिबी सहूलियात फराहम करने के लिए मेडिकल कैंप्स भी लगाए गए हैं और फरोख्त मुकामात पर कोरोना से बचाव के लिए SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। शहरियार भट्ट, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, गुजरांवाला। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू लोधरा ने माली साल 2020-21 के दौरान 703 मिलियन रुपए का रिकॉर्ड टैक्स वसूल किया। तफसील बताएंगे अब्दुल्ला डाहा। लोधरा में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के इनलैंड रेवेन्यू ने माली साल 2020-21 के दौरान 70 करोड़ 30 लाख रुपए की रिकॉर्ड टैक्स वसूली की, जो माली साल 2020 और 21 के लिए मुकर्रर करदा हदफ से 11% ज्यादा है। बड़ा जो ग्रोथ हुआ है उसमें जो बुनियादी वजह है वो एक स्टाफ का लोगों से खुश अखलाकी से पेश आना, अच्छा रवैया दिखाना और जो विद होल्डिंग एजेंट्स से उनको बताना कि उनकी क्या जिम्मेवारी है, उन्हें किस तरीके से टैक्स काटना है और कौमी खजाने में जमा कराना है। FBR लोधरा के अफसरों और दूसरे अमले की तरफ से हदफ से ज्यादा टैक्स वसूली पर इनके हौसला अफजाई के लिए टैक्स हाउस लोधरा में तकरीब हुई, जिनमें नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अफसरों, अमले और दूसरे अफराद में कैश प्राइज तकसीम किए गए। जिन लोगों ने नुमाया कारकर्दगी की उनको कैश इनामात दिए गए। हर शहरी को टैक्स देना होगा क्योंकि इसके बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। और लाहौर में ट्रैफिक के मसाइल अब होंगे हल। सूबाई दारुल हुकूमत के मसरूफ तरीन मकामात पर 10 अरब रुपए से ज़ायद की लागत से मुतादिद मेगा मंसूबे शुरू किए गए हैं। इन मंसूबों की अहमियत और अफादियत के बारे में रिपोर्ट कर रही हैं सिदरा आसिम। लाहौर में बढ़ती हुई आबादी के बायस ट्रैफिक के मसाइल शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं, खसूसन बास मकामात पर तो वक्त पर पहुंचना भी जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। रेलवे स्टेशन के करीब शेरावाला गेट 9 लखा और अंदरून लाहौर की सहूलत के लिए शेरावाला गेट फ्लाईओवर तामीर किया जा रहा है। 11 किलोमीटर तवील ये 2 रुइया फ्लाईओवर सिग्नल फ्री होगा और इससे 1,30,000 गाड़ियों को सिग्नल फ्री रास्ता मुयसर आएगा। इसके अलावा इलाके में पार्किंग के मसाइल के हल के लिए 3 पार्किंग प्लाजास भी तामीर किए जा रहे हैं। जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के विजन के एन मुताबिक हैं कि शहर में जो पोल्यूशन है उसमें कमी हो, और पोल्यूशन में कमी एक ही तरीके से हो सकती है कि गाड़ियाँ तो बहुत ज़्यादा हैं, मोटरसाइकिल और इस तरह की व्हीकल ट्रैफिक बहुत है, वो स्मूथली चलेगी तो उसमें पोल्यूशन में कमी होगी। तो दूसरा ये है कि लोगों को टाइम की बचत हो, टाइम पे लोग पहुँच सकें। तो ये तीनों प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इनको डिज़ाइन करवाया था, इन्हीं मकासद को सामने रख के करवाया था। मुल्तान रोड के करीब किनाल रोड और डिफेंस रोड के संगम पर शाकाम फ्लाईओवर भी तामीर किया जा रहा है। इस मंसूबे पर 14 अरब 20 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस मंसूबे में 6 किलोमीटर तवील डिफेंस रोड को भी बेहतर किया जाएगा और इस प्रोजेक्ट से किनाल रोड, मुल्तान रोड, डिफेंस रोड से गुजरने वाली ट्रैफिक को सहूलत मुयसर आएगी। राश में होते हैं, तेल भी हमारा ज्यादा लगता है, बहुत परेशानी है, ये बन जाएगा हमको सहूलत हो। इत्थे ट्रैफिक बड़ी जाम रहिंदी सी, बड़ी मुश्किल नाल जाई आईदा ही। अंडरपास की आवाराफाई बंद है ना, तो ये आवाम में बहुत सहूलत होगी इसकी। फिरोजपुर रोड गुलाब देवी अस्पताल के करीब अंडरपास भी तामीर किया जा रहा है, जिस पर 1 अरब 71 करोड़ 16 लाख रुपए की लागत आएगी। ये अंडरपास 11 मीटर चौड़ा और 3 लेंस पर मुश्तमिल होगा। इस मंसूबे से रोजाना 1 लाख से ज्यादा गाड़ियों को फायदा होगा, जबकि अस्पताल आने वाले मरीजों को भी सहूलत मिलेगी। पंजाब हुकूमत ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों के दरमियान आवाम को आमदरफ्त की सहूलत फराहम करने के लिए जो तरक्याती मंसूबे शुरू किए हैं वो यकीनन काबिल सताइश है। सिदरा आसिम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। IT के वफाकी वजीर अमीनुल हक इस वक्त एक तकरीब से खिताब कर रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। और शिकारपुर, जैकबाबाद और कश्मीर के 271 देहातों में हाई स्पीड मोबाइल ब्रॉडबैंड सर्विसेज के फराहमी के मंसूबे का आगाज़ किया। इस मंसूबे पर 34 करोड़ रुपए का मंसूबा है। तो यस, हम इंटीरियर सिंध में अपने काम को जारी व साई रखे हुए हैं और आज मेरा ख्याल है कि ये तकरीब बड़ी इंपॉर्टेंट थी और ये 2.1 मिलियन की तकरीब है।
साथ साथ मैं थोड़ा सा अफसोस का भी इजहार करता हूँ कि जैसे मैंने कहा कि बला तफरीक रंग व नस्ल, हमारी क्या ख्वाहिश थी कि इसके ऊपर सिंध की हुकूमत भी ऑन बोर्ड होना चाहिए। मेरे पास ये चंद जनाब सदर साहब, मेरा ख्याल है कि मैंने भी आती आपके कान में भी बात की कि मेरे पास ये चंद दावतनामे जो मैंने चीफ मिनिस्टर सिंध को लिखा। पहला मैंने लेटर उन्हें गालिबन 4 जनवरी 2021 को लिखा कि हम एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लगभग 3 बिलियन का था जो हम गवर्नर हाउस में करना चाह रहे थे, और हमने उनसे कहा कि आप गेस्ट ऑफ ऑनर बने और गवर्नर साहब मेहमान खसूसी होंगे। उनका कोई जवाब नहीं आया। हमने 4 जनवरी को प्रोजेक्ट कर लिया और MOU साइन कर लिया। फिर दूसरी दफ़ा मैंने उन्हें फिर दोबारा लेटर लिखा और उनसे रिक्वेस्ट की कि अगर आप गवर्नर हाउस नहीं आना चाहते तो हम एक और प्रोजेक्ट को लॉन्च करने जा रहे हैं, बराए मेहरबानी आप चीफ मिनिस्टर हाउस में रख लें, हम वहाँ चल के चले जाएंगे। वो लेटर की कॉपी भी मेरे पास मौजूद है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये लेटर हमने गालिबन 3 फरवरी 2021 को लिखा, लेकिन उसका भी कोई जवाब नहीं आया। आज अल्हम्दुलिल्लाह सदर मुमलिकत साहब यहाँ पे मौजूद है। मैंने उनसे दोबारा रिक्वेस्ट की आज की तकरीब की, मैंने कहा कि मेहमान खसूसी सदर मुमलिकत हैं, आप गेस्ट ऑफ ऑनर बने। ट्रस्ट मी, कोई जवाब नहीं आया। मुझे इस बात का अंदाज़ा था, तो मैंने बैकअप के तौर पे क्या किया कि जो इनके IT मिनिस्टर हैं तालपुर साहब, उनको एक ख़त लिखा, कम अज़ कम अगर बड़े साईं नहीं आते तो आप छोटे साईं आप तशरीफ़ ले आए। मैंने गालिबन उनको ये लेटर इसी महीने लिखा, लेकिन शर्म की बात यह है कि जब हमने उन्हें लेटर लिखा, होना क्या चाहिए था कि मेरे लेटर हेड पे लेटर किया, दावतनामा उनको दिया है, लेकिन उन्होंने इंतहाई जिसे कहते हैं कि पस्त हरकतें की कि उन्होंने अपने लेटर हेड के बजाय अपने पर्सनल सेक्रेटरी से मुझे लेटर लिख के माजरत की। ये वो अमल है जो सिंध हुकूमत सिंध के तरक्याती कामों में अमल दखल करना नहीं चाहती है। मैं साफ और वाज़ेह अल्फाज में ऐलान करता हूँ कि सिंध के तरक्की में तरक्याती कामों में किसी किस्म की रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारा अमल तरक्याती कामों में जारी व सारी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। ये प्रोजेक्ट जिस तरह हम चला रहे हैं चलाते आएंगे। मेरा ख्याल है कि बाद औक़ात अफसोस भी आता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, मेरा ख्याल है कि अगर पूरे पाकिस्तान में देखा जाए तो 70 से लेकर आज तक 7 बारी मुकम्मल कर चुकी है, और पिछले 2008 से लेकर गालिबन 13 साल 14 साल होने जा रहा है, तीसरी बारी मुकम्मल कर रही है। लेकिन कोई एक ऐसा यूसी, मेरा ख्याल कोई एक ऐसा मॉडल यूसी पाकिस्तान के अवाम को दिखा दे जिस पे हम फ़ख्र कर सकते हैं, जहाँ हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मौजूद है, सीवरेज का निज़ाम मौजूद है, अच्छे स्कूल मौजूद हैं या पानी का निज़ाम मौजूद है। मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है। सिर्फ पिछले 2 साल को हम टारगेट कर ले, चलें पिछले भूल जाते हैं कि NFC के ज़रिए उन्हें कम अज़ कम 1500 अरब दिए गए। वो 1500 अरब कहाँ खर्च हुए? आज सिंध के अवाम ये सवाल पूछते हैं। आज कराची के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे बताए कि आज 21वीं सदी में रहते हुए हमें शर्मिंदगी होती है। आज 21वीं सदी में रहते हुए हम चिंची रिक्शा इस्तेमाल करते हैं। आज लाहौर को देखते हैं, पेशावर को देखते हैं, मुल्तान को देखते हैं, पिंडी को देखते हैं, आज तक इस्लामाबाद को देखते हैं। इन तमाम जगहों पर मेट्रो मौजूद है। उन मेट्रो को किसने बनाया है? उनकी सूबाई हुकूमतों ने बनाया। क्या मेरा बच्चा, क्या आप, मैं और आप टैक्स नहीं देते? हम टैक्स देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सूबाई हुकूमत सियासी इंतकाम के तौर पर कराची के अवाम को, हैदराबाद के अवाम को, लाड़काना के अवाम को मेट्रो प्रोवाइड नहीं कर रही है। लाहौर का बच्चा, मुल्तान का बच्चा, 20 नौजवान 20 रुपये देकर एयर कंडीशन बस पे सफ़र कर सकता। हम तो खुश होते हैं, लेकिन क्या कराची का नौजवान किसी से पीछे? क्या उसका हक नहीं बनता? क्या वो टैक्स नहीं देता? क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? हर चीज़ है, लेकिन सियासी इंतकाम के नाम पर, तासब की बुनियाद पर, लसानियत की बुनियाद पर कराची को दूर रखा जा रहा है। कि आज 13 साल गुजर चुका है, मुसलसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत करती चली आ रही है। कराची के अवाम को 13 गैलन पानी नहीं दिया गया। 13 साल गुजर चुका है, कराची हैदराबाद के लिए 13 बसें नहीं दी गई। हम आज अगर चीफ मिनिस्टर सिंध का जो तनख्वाह मिलती है उसका 95% कराची देता है, 70% फेडरल गवर्नमेंट को टैक्स हम जमा करके देते हैं, लेकिन हमारे लिए सिंध हुकूमत कुछ करने को तैयार नहीं है।
यस जनाब सदर, आई एम थैंकफुल टू यू एंड होल ऑफ योर टीम कि आज अगर ग्रीन लेन का मंसूबा है तो कौन कर रहा है, K4 का मंसूबा है तो कौन मुकम्मल करने जा रहा है, वफाकी हुकूमत मुकम्मल करने जा रही है। इसी तरीके से मैं समझता हूँ तमाम जो बड़े बड़े मंसूबे हैं, आज फायर टेंडर 52 फायर टेंडर वफाकी हुकूमत ने तोहफे के तौर पे KMC को दिया। आग बुझाने की जिम्मेदारी किसकी थी? आज यहां पर आप ये सुनकर हैरान होंगे कि KMC के बाद 55 फायर टेंडर है, 55 में से सिर्फ 14 ऐसे फायर टेंडर हैं जो काम कर रहे हैं, बाकी खराब पड़े हुए थे। सिंध में तरक्याती कामों में रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी, तरक्याती मंसूबों को जारी रखा जाएगा। मुश्तरका तौर पर मंसूबों के आगाज़ और प्लानिंग के लिए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को मुतअद्दिद बार दावतनामे भेजे, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया और कई बार इनकार भी कर दिया गया। सिंध में बारहा बरसरे इक़्तिदार रहने वाली जमात पीपल्स पार्टी सिंध के अवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी में नाकाम हो चुकी है। वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक कराची में तकरीब से खिताब कर रहे थे। और इस वक्त आपको लिए चलेंगे लाहौर, जहाँ मिशाल मलिक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। के लिए वो फाइट करता है और उसको उसके नाम वकालतनामा लिखा जाता है, मगर आज तक इन 2 सालों के अंदर अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग लीगल टीम नहीं आई है पाकिस्तान की तरफ से जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इस मैटर को लेके जाए या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में लेके जाए या UN सिक्योरिटी काउंसिल में लेके जाए। देखें, ये सख्त वायलेशन है। मैं एक लॉयर नहीं हूँ, मगर क्योंकि मैं स्टडी करती हूँ, मेरा बहुत शौक भी है लीगल मैटर्स, क्योंकि लीगल इन्होंने एक लॉ फेयर किया है कश्मीरियों के ख़िलाफ़। ये 4th जिनीवा कन्वेंशन की सख्त वायलेशन है। जिस तरीके से एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी की आबादी को चेंज करना, अभी आपके आज़ाद कश्मीर के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं, वहाँ पे कोई पाकिस्तानी नहीं है जिसके पास स्टेट सब्जेक्ट हो या वोटर राइट हो, वहाँ सिर्फ आज़ाद कश्मीर के ही लोग वोट्स दे रहे हैं, वही मालिक हैं ज़मीनों के, उन्हीं के पास प्रॉपर्टी राइट्स हैं, क्योंकि जब तक इसका फाइनल सेटलमेंट नहीं होता UN की रेजोल्यूशंस के मुताबिक, तब तक आप आबादी को नहीं चेंज कर सकते। तो जिस तरीके से वहाँ पे हमारे हुर्रियत रहनुमाओं को जेलों के अंदर टॉर्चर किया जा रहा है, 2 हफ्ते पहले यासीन साहब की तिहाड़ जेल से एक फ़ोटो वायरल हुई है। एज अ वाइफ मैं नहीं पहचान सकी उनको कि 2 सालों में उनके सिर के बाल चले गए, उनको पस हो गई है, उनको एक डेथ सेल के अंदर रखा हुआ है, मारा पीटा जा रहा है, उनका वेट 25 kg ड्रॉप कर गया है। वो पिक्चर वैसे भी मीडिया के अंदर रोटेट काफ़ी हुई है और आई हैव नॉट गॉटन एक्सेस टू टॉक टू हिम। मैं एक पाकिस्तानी सिटीज़न हूँ, मेरा लीगल राइट है कि मैं एटलीस्ट फ़ोन पे अपने हस्बैंड के साथ बात कर सकूँ, हमारी बेटी भी इधर आई हुई है वो बात कर सके। तो ये सारे लीगल राइट्स हैं। जिस तरीके से एक दहशतगर्द कुलभूषण यादव का मुकदमा उसकी माँ और बेटी को हिंदुस्तान की हुकूमत ने बैकिंग की और वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके गए, तो ये तो एक हुर्रियत रहनुमा है, हम उनकी फैमिली हैं, मैं और मेरी बेटी पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स हैं, पाकिस्तानी सिटीजन्स हैं। तो हमारा मैटर, क्योंकि पाकिस्तान खुद सिग्नेटरी है UN की करारदादों का, तो मैं आपसे हेल्प लेने भी आई हूँ। ये आपका अपना मुकदमा है, कश्मीर का मुकदमा हर पाकिस्तानी, और सबसे ज़्यादा इस वक्त जो फ़र्ज़ है मैं समझती हूँ वो पाकिस्तान की वकला बरादरी के ऊपर है, और उन्हीं को इसकी समझ भी होगी, क्योंकि ये एक आम जिस तरीके की इसकी कम्प्लेक्सिटीज़ हैं और जिस तरह UN का मेकनिज़म है, रैपिटोस प्रोसीजर्स, कमीशंस ऑन टॉर्चर, ऑन राइट्स ऑफ प्रिजनर्स, जेनोसाइड, ये सारे सबसे हीनियस तरीन क्राइम्स हैं दुनिया के अंदर। तो मैंने ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब को भी ये तजवीज़ दी है कि या तो कोई कश्मीर काउंसिल आपकी तरफ से कोई हम मिल के इस्टेब्लिश करें जिसके अंदर इंटरनेशनल लॉ, ह्यूमैनिटेरियन लॉ के अकॉर्डिंगली हम लोग रिकमेंडेशंस दें पाकिस्तान की हुकूमत को भी, और हमारा मुकदमा भी जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट्स में लेके जाया जाए, और उसके साथ साथ पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस के अंदर भी एक कश्मीर सेल जो है, जो मैंने उनको पहले भी फॉरेन मिनिस्टर साहब को भी मैंने कहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझें कि इस वक्त हम अंधे हैं, हमें लीगल आंख से देखना है, और उसके लिए जब तक कि वो लीगल आंख साथ नहीं होगी फोर फ्रंट के ऊपर, हम ये मुकदमा नहीं जीत सकेंगे, चाहे हम जितने भी बहादुर हो जाएं, जितनी भी कुर्बानियाँ हो जाएं। अगर यहाँ पे मेजॉरिटी मिनी इंडिया बन गया अगले 1-2 साल के अंदर, तो हम कहाँ जाएंगे? कश्मीरियों की कुर्बानियाँ कहाँ जाएंगी? खित्ते की अमन और तरक्की कहाँ जाएगी? इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और आज मैं चाहती भी यही थी कि आपके साथ 1-on-1 हमारी मीटिंग हो। मैं नहीं चाहती थी कि बहुत ज़्यादा लोग इस वक्त हों हम लोग, ताकि हम लोग खुद मिल बैठ के
ڈسکس کریں، برین سٹارمنگ کریں کہ ہم بیسٹ ٹیم کو سلیکٹ آپ کریں. آپ کے ماشاءاللہ بہت بڑے بڑے لائرز ہیں، جس طرح ظفر صاحب نے بھی کہا، رائے صاحب نے بھی یہ بات کی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں ایک نئے جناح کی تلاش ہے پاکستان کی طرف سے، یا ایک نئے اقبال کی. اور مجھے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس بہت پوٹینشل ہے، مگر بس یہ بات ہے کہ شاید آپ انتظار کر رہے ہوں گے کہ ہمیں بلایا جائے، ہماری سکل کو، ہماری اوپینین کو، جس طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس مقدمے کو آگے لے کے جایا جائے. مقبوضہ کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کا بھارتی اقدام جرم ہے. کشمیر کا مقدمہ جیتنے کے لیے قانونی جنگ کرنی ہوگی. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی جاری ہے اور انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں. معروف حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہی تھیں.